Good morning, dear students. Welcome to my channel. Today, our lesson is a beautiful poem which is Ozymandias. It is written by Percy Shelley. It is a very strong poem and it has a lot of lessons for us. So, before starting today's poem, I would ask you two questions. So, whenever you think, can you think of your biggest achievements in life? What you want to achieve in your life? And what will be the end of your life? Like, who will know you? Who will talk about your achievements in your life? Even if you have a lot of achievements in your life, do you think that people will remember you and it will make any difference to people? What have you achieved? So, these are my questions to you that you will think and you will answer. Have a look on this picture. What do you feel about it? What do you think? Who is he? What he looks like? Don't you think he looks like a king? A statue of a king who belonged to Egypt? ये एक ऐसे बादशाह का मुजस्मा लग रहा है जो मिस्र से बिलोंग करता था और बेसिकली आवर पोएम इज़ अबाउट अ किंग. सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु वाज नोन एज ओzymandias. एक ऐसा बादशाह था जिसका नाम ओzymandias था. ही वाज ऑल माइटी एंड पावरफुल and he had a lot of achievements in his life. His people loved him. He had a lot of places which he has built. He had a grand palace in which he had a lot of servants. He had a perfect life full of achievements and full of wealth. He considered himself a god. He had all the powers of godly stature. वो इतना स्ट्रांग था, वो इतना ज़्यादा पावरफुल था, ताकतवर था कि उसको लगता था कि शायद वो एक खुदा है. Who was he? So this poem is focused on Egyptian king. एक मिस्र का बादशाह था जिसको जहन में रखते हुए ऐसा लगता है कि शैली ने ये पोएम लिखी है. सो दैट पर्सन इज़ रामेसे टू. तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं. हिज लाइफ, हिज अर्ली रेन वॉज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग सिटीज़. उसको बहुत शौक था बड़े बड़े शहर बनाने का, टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करने का, मंदिर बनाने का और मोनूमेंट्स, यादगारें बनाने का. He made a city who was called P. Ramesses, who was situated in the Nili Delta. दरियाए नील के किनारे पे वो शहर उसने बनाया था. So by the time of his death, he was aged about 90 years. He was 90 years old and he had made Egypt rich from all the supplies and riches he had collected from other empires. उसने मिस्र को बहुत अमीर कर दिया था क्योंकि बादशाहत का सिस्टम होता है, the kingdom that is increased by conquering other places. So he had made Egypt richest of all the other cities. So his people loved him a great deal. Now I will share you some images that you are going to encounter in this poem. आप इस poem में ये words पढ़ेंगे और मैंने कुछ pictures ली हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि what actually these words mean. Bear. Bear का मतलब होता है नंगे पाँव. Bear means uncovered. You can see in this picture the person is barefooted. Boundless, limitless, in which there is no boundary. Decay. Decay का मतलब होता है तबाही का शिकार हो जाना या खस्ता हाली का शिकार हो जाना. You can see it's a picture of a building which is being decayed. Despair. What this girl looks like, how you feel about it? Doesn't she seem desperated or in despair? Despair का मतलब होता है मायूसी. Frown. Whenever some person has these kind of expressions on his face, जिसको आप कह सकते हैं गुस्से के expressions होते हैं, तो उन expressions को कहा जाता है frown. माथे पे जो बल डाले जाते हैं. Mighty. Mighty means strong, ताकतवर. Mocked. To mock. Mock का मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ का. Passions. जज्बात को बोला जाता है.
फीलिंग्स जो इंसान की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं। पेडिस्टल, पेडिस्टल का मतलब होता है सतून। किसी भी बिल्डिंग्स के जो बड़े बड़े सतून होते हैं उनको पेडिस्टल्स कहा जाता है, विच आर द फाउंडेशंस। रिमेन्स, रिमेन्स बाकियात को बोला जाता है। व्हेन एवरीथिंग इज़ डिस्ट्रॉयड, व्हाट रिमेन्स आफ्टर, जो पीछे बच जाता है उसको रिमेन्स बोला जाता है। शैटर्ड, शैटर्ड का मतलब है टूट जाना, कोई भी चीज़ जो टूट जाए, शैटर हो जाए। स्नीर एक स्पेसिफिक फेस एक्सप्रेशंस होता है जो मगरूर इंसान के फेस पे आपको नज़र आता है। स्टैम्प्ड, मोहर लगा देना। ट्रंकलेस, जिसका ऊपर से धड़ उतार दिया जाए, बॉडीलेस। यू कैन सी दीज आर ओनली 2 legs एंड दिस स्टैचू इज़ ट्रंकलेस। ऊपर की जो बॉडी है वो बिल्कुल गायब है। wreck, तबाह हो जाना। यू कैन सी दिस कार इज़ wrecked। wrinkled, रिंकल्स बोला जाता है झुर्रियों को जो हमारी स्किन पे आ जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। बेयर, बेयर का मतलब होता है बिल्कुल नंगा, जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। बाउंडलेस, यू कैन सी, नो, this is the image, this is the statue, the poem is all about this picture. You can read the poem while thinking about this image in your mind. So this statue is bare, it's uncovered, and it is in the boundless desert. This desert has no boundaries, in which this statue, you can see it is kept there, it is there bare, just in bare form, as if it is helpless, and it is so little as compared to the vastness of desert. सहरा की जो वास्टनेस है, जो ग्रेटनेस है, उसके सामने इस जो मुजस्मा है, इसका जो हुजम है और जो इसकी अहमियत है वो बिल्कुल ज़रा बराबर लग रही है। सो डिके, आप कह सकते हैं कि दिस स्टैचू इज़ बीइंग डिकेड, ये आहिस्ता आहिस्ता डिके की तरफ जा रहा है, अपनी तबाही की तरफ जा रहा है। एंड यू कैन सी डेस्पेयर, कांट यू सी डेस्पेयर ऑन हिज फेस? आपको इस मुजस्मे के चेहरे पे कोई डेस्पेयर नज़र आ रहा है, कोई मायूसी? फ्रोन, आप देख सकते हैं कि इस मुजस्मे के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उसमें एक फ्रोन है, एक फिरौनियत है, एक ऐसा गुरूर है जो शायद अब मिट्टी में मिल चुका है। माइटी, इसके एक्सप्रेशंस में आपको माइटीनेस का भी अंदाज़ा होगा कि वो ये बादशाह शायद अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को बहुत माइटी समझता होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझता होगा। मॉक्ड एंड टू मॉक, और ऐसा लगता है कि ये बादशाह बहुत मगरूर होगा और दूसरे लोगों का मजाक उड़ाता होगा अपनी ज़िंदगी में। ही मस्ट हैव बीन इन हैबिट ऑफ मेकिंग फन ऑफ पीपल एंड टू मॉक पीपल। पैशंस, you can see from this face that this face would have a lot of passions. Pedestal, remains, you can see ये जो मुजस्मा है अब ये सिर्फ रिमेन्स रह गया है, मतलब ये बाकी रह गया है, शायद ट्रंकलेस किसी मुजस्मा की बाकियात हैं। शैटर्ड, टूट रहा है। स्नीर, इसके फेस पे आपको जितने भी नेगेटिव एक्सप्रेशंस हैं वो फील होंगे। सो दीज आर द वर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न विद मीनिंग्स। Now let's move towards poem. Now when you will read poem now, so the words would be quite meaningful to you. So he was the poet Percy Shelley who wrote this poem, and this poem is about a king who was very powerful, who had all the powers, but now when we see at his statue, so we can see that with the passage of time everything goes away. So everything in life is so temporary that we cannot be proud of anything in our lives. So let's start reading of the poem. I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. So in these lines we can see the poet tells us a story that once upon a time, एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं एक पुरानी ज़मीन पे सफ़र कर रहा था और मुझे वहाँ एक मुसाफिर मिला जिसने मुझे कहा कि वहाँ सहरा में दूर एक दो टांगे देखी हैं मैंने, दो स्टोन की बड़ी बड़ी
टांगे देखिए जिनके ऊपर धड़ नहीं है। आई हैव सीन 2 legs विदाउट बॉडी। Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies. और उनके पास थोड़ा दूर मुझे एक ऐसा धड़ नज़र आया, एक ऐसा चेहरा नज़र आया है जो रेत के अंदर आधा धुंसा हुआ है। Whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command, जिसके चेहरे पे गुस्से के आसार हैं, उसके जो होंठ हैं वो रिंकल्ड हैं, झुर्रियाँ ज़्यादा हैं, और उसके चेहरे पे उसकी जो फिरौनियत है, उसके जो गुस्से की लहर है वो साहिर है। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड। स्कल्प्टर बोलते हैं मुजस्मा साज को। तो वो कहते हैं कि उस मुजस्मा साज को बताओ जिसने उस बादशाह के स्टैचू के चेहरे पे वो पैशंस लिखे हैं। हो सकता है कि वो उस बादशाह को पर्सनली जानता हो और उसने उसको बादशाह को देखते हुए ये मुजस्मा बनाया हो, और उसने एग्जैक्टली उस बादशाह की फिरौनियत, उसका गुरूर, उसका गुस्सा उसके चेहरे पे स्टैम्प कर दिया है। हालांकि ये लाइफलेस चीज़ है, स्टैम्प्ड ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स। A statue is a lifeless thing, but we can see the passions of that king on his face. That is the mastery of that sculptor. उस मुजस्मा साज ने इतनी महारत से उस बादशाह के सारे एक्सप्रेशंस, उसकी नेचर उसके चेहरे पे स्टैम्प कर दी है, बना दिया कि हमें आज भी, क्योंकि ये मुजस्मा टूट रहा है, इसके बावजूद उस बादशाह की फिरौनियत, उसके गुरूर और उसके तकब्बुर का अंदाज़ा हो रहा है। द हैंड दैट मॉक्ड दैम एंड द हार्ट दैट फेड। उसके हाथ हम देख सकते हैं जिन्होंने लोगों का मजाक उड़ाया, और वो दिल भी हम देख सकते हैं, वो सीना देख सकते हैं जिसके अंदर उसने इस किस्म के पैशंस रखे हैं। और एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। उसका जो पेडिस्टल है, उस मुजस्मे के नीचे जो एक जगह बनी हुई है, उस पर कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं। लेट्स सी व्हाट आर दोज लाइन्स। तो उस पर लिखा होता है, माई नेम इज़ ओजिमेंटियस, किंग ऑफ किंग्स। मेरा नाम ओजिमेंडियस है, मैं बादशाहों का भी बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डेस्पेयर, अपने काम के बारे में बूस्ट करता है, दैट आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, एंड आई एम सो पावरफुल। एंड डेस्पेयर, डेस्पेयर का वर्ड यहाँ यूज़ किया है कि फिर भी वो मायूस है। बिकॉज नथिंग बिसाइड रिमेन्स, बिकॉज नथिंग स्टेज फॉर एवर, एवरीथिंग इज टेम्पररी, राउंड द डिके ऑफ द कोलोसल रैक। बिकॉज हम देख सकते हैं कि इस बड़े से जो तबाहशुदा मुजस्मा के पास आप देख सकते हैं कि कितनी तबाही फैली हुई है। ये उस बादशाह का मुजस्मा है who used to boast of his achievements, his grandeur, his greatness, but see, his statue is just lying bare on the sand, helpless and valueless, boundless and bare. The level sand stretches far away. He is alone, and what is there for him? Just the sand who is covering his statue. सिर्फ और सिर्फ रेत है उसके पास जो उसके मुजस्मे को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही है, उसके ऊपर पड़ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएगा। So these are the words, underlined words, which we have discussed in the beginning of this lecture. So you will find the meanings of this word. It's your duty. So the main theme, the most prominent theme of this poem is irony. This poem is based on irony. अब आप सोच रहे होंगे कि what is irony? So irony is when you attempt to do something but that produces an opposite effect. आप एक चीज़ कर रहे होते हैं, आप एक बात कर रहे होते हैं, but actually उस बात का जो असर होता है वो उसका ऑपोजिट होता है। जैसे कि इस पोएम में आपने देखा कि हम वी वर टॉकिंग अबाउट अ पावरफुल किंग, वी वर टॉकिंग अबाउट हिज ग्रैंडियर, हिज सक्सेस, हिज ग्रेटनेस एज अ किंग, बट ऑन द अदर हैंड वी हैव सीन हिज डिके। हमने ये देखा कि उसकी सारी शान और शौकत इज़ ऑफ नो यूज़, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ टेम्प्रेरी है। एवरीथिंग इज़ यू कैन से टेम्प्रेरी एंड एवर एंडिंग। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपको क्या लगता है कि ये कन्वर्सेशन कहाँ हुई है, और पोइट क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज़ ही थिंकिंग। आपको क्या लगता है कि जो स्कल्प्टर है, क्या वो भी मगरूर होगा अपने इस काम को देख के। और जब वो लाइफलेस थिंग्स की बात करता है तो लाइफलेस का मतलब क्या है, कि वो बेजान है, या फिर वो इसलिए उसको कह रहा है लाइफलेस कि क्योंकि वो सीमेंट का बना है। तो ये चीज़ें आपने खुद से पूछनी हैं। Or okay, now I have some more questions for you. Do you know any modern day leader who fits the bills of this poem?
डू यू नो द लीडर हु हैज़ दिस ग्रैंडियर? क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसकी ये ग्रेटनेस हो, जो इतना सक्सेसफुल हो? एंड डस दिस पोएम रिमाइंड यू ऑफ एनी थिंग यू हैव सीन इन योर ओन एक्सपीरियंस? क्या आपने ऐसा शख्स देखा है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत मगरूर रहा होगा और शायद उसकी आफ्टर हिज डेथ ही इज़ नो मोर? एंड विच लीडर्स वुड यू वॉन्ट टू रीड दिस पोएम? ऐसा कौन सा लीडर होगा जिसको आप ये पोएम पढ़ के सुनाना चाहते होंगे? सो दैट वॉज द पोएम गर्ल्स. That is very strong poem, and you have to learn it, its reference to context, and the question I have asked you, do answer me. We will meet tomorrow. Till then, take care. Allah Hafiz.